So now write down the heading macroscopic approach. Macroscopic approach. And this is also called classical thermodynamics. Classical thermodynamics. Okay. Write down here. First point. Study of behavior of group of molecules as a whole or continuum. We will discuss continuum also, okay, don't worry, is done. So मैक्रोस्कोपिक में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का स्टडी नहीं करते हैं, वी डू द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल एज ए होल. ओके. नेक्स्ट पॉइंट. ऑल पी वी टी एटसेट्रा are measured measured at macro level, so called macroscopic properties, ओके. इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए प्रेशर मालूम कर सकते हो क्या? कैन वी फाइंड द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल? नो. ओके. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेशर देन देयर मस्ट बी ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल. गैस होना चाहिए. ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज इनसाइड द कंटेनर. हाउ वी कैन स्टडी द प्रेशर ऑफ दिस मॉलिक्यूल? Getting point or not? So the study of these quantities means we are doing the macroscopic level study. Okay. Next. Hence, average value of the properties are taken. Average value of the properties are taken. Okay. Now, what is the continuum? We have used a word here, continuum, है ना? So what is continuum? Write down heading continuum concept. Continuum concept. स्पीड इज फाइन ना? ज़्यादा स्लो या फास्ट तो नहीं है? स्लो चल जाएगा, चैप्टर फास्ट है, बट फास्ट तो नहीं है ना? ओके. Now come to the continuum concept. So write down here. It is idealization where we assume continuous distribution of mass or matter
throughout its volume, throughout its volume without any gap or void, without any gap or voids between them. इतना ही लिख दो, गैप और voids. इसका मतलब क्या है? What is meaning of this? For example, every matter is made up of molecules, okay, and it can exist in three forms: solid, liquid, gas. Okay, when the molecules or atom of matter are very close, and they have fixed position like this, then this will be called solid. Yes or no? Their position are fixed relative to each other, and at their position they can vibrate like this. ऊपर नीचे थोड़ा vibrate कर पाएंगे, but their position is fixed, then it will be called solid state. When the position is not fixed and they can move with respect to each other like this, but still have the intermolecular attraction forces much enough, then they will be called liquid form. And when this motion become very high and they can move freely with respect to each other at very large distances, then it will be said that matter exists in gas form. Okay, so actually whether it is solid, liquid or gas, there is gap between the atoms or molecule. Actually क्या है, उनके बीच में gap रहता है, ये gap है. Yes or no? There is gap between them. Actually gap is there. But according to quantum, what we assume, there is no gap. जो मैटर है, मैटर इज कंटिन्यूअसली फिल्ड इन दिस होल वॉल्यूम. मान लो ये एक मास है जिसका मास है 10 kg. कोई भी मैटर ले लिया, मैंने गोल्ड ले लिया. लेट्स से ये गोल्ड का एक ब्लॉक है, दिस इज द ब्लॉक ऑफ गोल्ड, और वो गोल्ड का मास है 10 kg और उसका वॉल्यूम है लेट्स से कुछ 0.2 मीटर क्यूब. इस पूरे वॉल्यूम में अकॉर्डिंग टू क्वांटम कंसेप्ट देयर शुड नॉट बी एनी गैप. उसमें एटम को एज्यूम नहीं किया जाएगा, उसमें मॉलिक्यूल को एज्यूम नहीं किया जाएगा. क्या एज्यूम किया जाएगा? ये एज्यूम किया जाएगा, वी विल एज्यूम दैट दिस कंप्लीट वॉल्यूम इज फिल्ड बाय द गोल्ड मटेरियल. एवरीवेयर देयर इज गोल्ड. मतलब जब मैं इसको जूम करूंगा तो मुझे ये गैप नहीं दिखना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी गैप. मैटर इज कंटिन्यूअसली फिल्ड इन दिस वॉल्यूम लाइक दिस. बट इट इज नॉट द ट्रूथ. इट इज नॉट द ट्रूथ. बात आई ना समझ में? What is the truth? Truth is this, that there is gap between the molecules. Okay, molecules and atom of any material are like this and there is certain gap between them. But quantum concept में हम gap को neglect करते हैं. Why? Why? Listen here. One thing is quantum that is completely filled like this. Completely filled like this. This is my system, let's say. अब मैं कहता हूं मुझे इस सिस्टम में पता करना है क्या? टेम्परेचर. सो इन दिस सिस्टम व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड, आई कैन पुट माय थर्मामीटर एनीवेयर. आई कैन पुट थर्मामीटर एट दिस पॉइंट, देन इट कैन गिव द रीडिंग. आई कैन पुट द थर्मामीटर हेयर, हेयर, हेयर. एट ऑल पॉइंट आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर. यस और नो? If this system has temperature let's say 25 degrees C, then at all points the temperature I can be measured. मैं उसे मेजर कर पाऊं. There should not be gap. अब अज्यूम करो कि गैप है, इतने में मटेरियल है, इतना गैप है, इतने में मटेरियल है, इतना गैप है, इतने में मटेरियल है, फिर यहाँ गैप है. अगर मैं यहाँ रखूँगा थर्मोमीटर तो मेरे को टेम्परेचर मिलेगा. But if my thermometer goes here at this point, there will be no reading of temperature because temperature तो material का होगा ना. There is no material at all. Then temperature मिलेगा किसका? We cannot find the reading. Got the point or not? And we can also not find the pressure.
बिकॉज प्रेशर वहीं होगा जहां मटेरियल होगा, गैस या फ्लूइड होगा, लिक्विड होगा। अगर वहां मटेरियल ही नहीं है तो प्रेशर किसका? प्रेशर कैन नॉट बी फाइंड इन दी एम्प्टी स्पेस, दैट विल बी लाइक जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो। इसलिए फॉर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम दैट मैटर इज कॉन्टिनम कंसेप्ट। मतलब जो हम थर्मोडायनेमिक्स में गैस अज्यूम करेंगे ना, गैस, इट इज फिल्ड विद गैस, गैस को भी हम क्या मानेंगे? इट इज फिल्ड कंप्लीटली लाइक दिस, देयर इज नो गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल। हम गैस मानेंगे, बट गैस को हम कैसा मानेंगे? इट इज कंप्लीटली फिल्ड, इट इज कॉन्टिनम। ये तो फिजिकल इसका फीलिंग हुआ। व्हाट इज द बेनिफिट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स? क्योंकि हर प्रॉपर्टी का हमें मैथमेटिक्स बनाना है, मतलब उसका फॉर्मूला बनाना है, मतलब उसका इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाना है ना, इक्वेशन में कई जगह डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है और इंटीग्रेशन भी करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर पॉसिबल ओनली फॉर द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ना, मैथमेटिक्स जानते हैं ना थोड़ा बहुत। continuous function means temperature must be continuous function of the space x y and z। मान लो ऐसे गैस भरा हुआ है, ये 3D एक कंटेनर है, इसमें गैस भरा हुआ है, दिस इज द x, दिस इज द y एंड दिस इज द z। अब अगर मेरा टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन एक्स वाई जेड का नहीं होगा तो मैं उसका टेम्परेचर का इक्वेशन ही नहीं लिख पाऊंगा इस गैस के सिस्टम के लिए। मैंने माना हुआ है कि इस सिस्टम में, मतलब इस गैस, ये कंटेनर में जो सिस्टम है, गैस है, दैट इज कंप्लीटली फिल्ड लाइक दिस, उसमें कहीं भी गैप नहीं है। देन टेम्परेचर एट ऑल पॉइंट यू कैन फाइंड x1 y1 z1 x2 y2 z2, यहां पर पता करेंगे। तो एज पर मैथमेटिक्स ऑल्सो टू मेक इट इजी, क्वांटिनम अप्रोच इज अज्यूम्ड। बात समझ आई? सो ड्यू टू क्वांटिनम कॉन्सेप्ट हम गैस का मॉलिक्यूल तो सेपरेट रहता है, बट वी अज्यूम दैट कि हम वो उसको कंप्लीटली फिल करके इधर भी प्रेशर पता कर सकते हैं, इस पॉइंट पर भी प्रेशर पता कर सकते हैं और इस पॉइंट पर भी प्रेशर पता कर सकते हैं। देयर विल नॉट बी एनी गैप। बात आई ना समझ में? तो यहां तक क्लियर हुआ? तो जय हिंद लिखो फटाफट। तो फिजिकली वी विल अज्यूम that gas is continuously filled inside the container, there is no gap बेटा, there is no gap। क्योंकि गैप होगा तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, दिस इज विस्कोसिटी, डेंसिटी, ओके, ऑल दीज थिंग्स आर विल नॉट बी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ स्पेस। और कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा तो हम उसका ना डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, ना उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, तो उसका मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, और मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाएंगे तो थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी कैसे हो पाएगा? ठीक है, चलिए। सो दिस इज कॉन्टिनम, एजम्पशन पर बेस होता है फॉर द सिंप्लीफिकेशन।